Everybody lift up your hand towards heaven and praise Him. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए इस वक्त Give Him glory. Just open your mouth and praise Him. Give Him glory. प्रभु को महिमा दे से महिमा Thank you, दे। Jesus. Rebe sekinto iriante. Thank you, Jesus. Ribanto soko rikanteke rebe namamasto koru. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Abba Father, we bow down before you, Lord. अब आप पिता हम आपके सामने झुकते हैं, We praise you and worship you. हम आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं। Thank you, Jesus, for this wonderful conference. धन्यवाद हो प्रभु जी इस सुंदर से कॉन्फ्रेंस के लिए। Already you have started speaking to us. और आपने पहले से हमसे बात करना शुरू कर दिया है प्रभु। You will reveal your mysteries to your people. आप अपने रहस्यमय चीजों को हर एक पर जाहिर करोगे करके धन्यवाद। Your people, they are ready to get transformed for your glory. और आपकी महिमा के लिए आपके लोग पूरी तरीके से परिवर्तन के लिए तैयार है। As now we are ready to meditate upon your word. और जैसे हम अब तैयार है आपके वचनों पर मनन करने के लिए। We believe lips are mine, but the words are coming from heaven. और हमें विश्वास है कि भले होठ मेरे ऊपर प्रत्येक शब्द तुम्हारे स्वर्ग से आ रहे प्रभु। Speak to your people, Lord. आपके लोगों से आप बात कीजिए। Thank you, Master, for answering this prayer. धन्यवाद हो प्रभु इस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। In Jesus' matchless name we pray. प्रभु यीशु मसीह के असामान्य नाम में मांगते पिता। Amen, amen, Amen. amen. Give a big hand to Lord Jesus. आइए मिलकर ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। Somebody shout a big hallelujah. और कोई जोर से हालेलुया कहे। यीशु मसीह की जय। Amen, amen. Please take your seats. आप सब बैठ सकते हैं। I'm so much glad to be here for the glory of God. और मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए And उपस्थित होकर। especially I'm thankful to Azadi team, Pastor Anand here. और मैं मुख्य करके धन्यवाद करता हूँ आजादी टीम के लिए और भाई आनंद के लिए। Amen. And Pastor Manoj, I'm very glad about Pastor Peter. Amen. और पासवान मनोज और पासवान पीटर के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ आपकी जिंदगी के लिए। Amen. आमेन। Are you excited? क्या आप उत्तेजित है? Hallelujah. Is this the same chamber where I came last time? क्या ये वही चेंबूर जहाँ पिछली मर्तबा में आया था? Are you here? क्या आप यहाँ पर है? बोले यीशु मसीह की जय। Say I'm happy. कहिए मैं खुश हूँ। Hallelujah. So the title of this conference is World Changers and the History Makers. तो इस सभा का जो विषय है वो है इतिहास रचने वाले और दुनिया को बदलने वाले। Amen. So just for you we have prepared this brochure like this. और ऐसे पोस्टर्स हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं। Hallelujah. Great people are here. प्रभु के महान दास है वहाँ पर। And at the bottom, और सबसे नीचे। hallelujah, I'm not going to talk about anybody here. और जो ऊपर है मैं उनके बारे में बात नहीं But कर you रहा हूँ। can see big crowd at the bottom. परंतु आप नीचे एक बड़ी क्राउड को देख रहे हैं। Hallelujah. They are the world changers and history और makers. वो उम्मत जो है दुनिया को बदलने वाले हैं। I'm talking about you. मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। Hallelujah. बोले यीशु मसीह की जय। So I believe something great is going to happen. और मैं विश्वास करता हूँ कुछ बड़ा यहाँ पर होगा। So whenever we face problems in our life, जब कभी हम तकलीफों से जूझते हैं जिंदगी में, many a times we see challenges after challenges after challenges. कई बार हम चुनौती के बाद चुनौतियां देखते रहते हैं। Many a time it happens, you are suffering with pain, और कई बार ऐसा होता है कि आप किसी दर्द से जूझ you रहे are हैं, praying for somebody, आप किसी और के लिए दुआ कर they रहे हैं, are healed but still you are going through the pain. वो चंगे हो जाते हैं पर आप दर्द से जूझते हैं। Through your prayers, God is doing great and mighty work. Still you are facing the same problems. आपकी दुआओं से लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े काम होते हैं पर कई बार आप तकलीफ में रहते हैं। बोले यीशु मसीह की जय। When you pray for yourself, many a times you face that God is not answering your और prayers. कई मर्तबा जब आप खुद के लिए प्रार्थना करते हैं आपको लगता है कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। And you face challenges after challenges, the problems after the problems. और उसके बाद आप चुनौतियों के बाद चुनौतियों को सामना करते रहते हैं। I'm going to tell you something very important. और आज मैं बहुत मुख्य चीज आपसे बताने वाला हूँ। Hallelujah. You have to decide something. आज आपको एक निर्णय लेना होगा। I will not run away from my challenges, आपको ये निर्णय लेना कि आपको चुनौतियों से नहीं भागना है, but I will run over the problems. परंतु आपको ये निर्णय कि आपको चुनौतियों के ऊपर दौड़ना है। नहीं समझ लो? How many of you understand Marathi?
How many of you understand Marathi? कितने लोग मराठी समझते हैं यहाँ पर? अरे वा, प्रेस द लॉर्ड. एकदम बरोबर जागेवर आलो मी. प्रेस द लॉर्ड. खूप आनंद होतो मला. मी तुम्हाला काहीतरी सांगणार आहे. समस्या आली ना, समस्येपासून पळू नका, पण समस्येच्या वर पाय ठेवून पुढे पळा. Amen. आता समजलंय. आमेन. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की जय. Psalm chapter 91 and verse 13. भजन संहिता उसका 91 अध्याय उसका 13 वचन. You will tread on the lion and the cobra, you will trample the great lion and the serpent. कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ देगा. Amen. Amen. You will tread on the lion and the serpent. लिखा है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा. Luke chapter 10 verse 19. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of enemy. Nothing will harm you. लूका का किताब 10वां अध्याय उसके 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु के सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी. Can you say amen to that? क्या आप आमीन कह सकते हैं? If the lion is coming towards you, अगर कोई शेर आपकी तरफ आ रहा है what you will do? तो आप क्या करोगे? If the lion is coming towards you, scorpion is coming towards you, the snake is coming towards you, the people they will run away. अगर कोई शेर, कोई सांप, कोई बिच्छू अगर लोगों के तरफ आ रहे तो लोग उल्टा दौड़ेंगे. But the Bible says that परंतु बाइबल यूं कहती है, you will stamp over the scorpions, over the snakes, over the lion. परंतु बाइबल कहती कि तुम उन आते हुए सिंहों को, सांपों को और बिच्छुओं को आप कुचल के रख देंगे. Can you say amen to that? आमेन. When the problems are coming towards you, जहां से मुसीबत आपकी तरफ आ रही है, you will stamp over your problem. आप उस मुसीबत के ऊपर पैर रखे उसे कुचल देंगे. Amen. Hallelujah. This year is a year of victory. और ये जो साल है ये जयवंतता का साल है. God gave me a verse, Isaiah chapter 54 and verse 2. और प्रभु ने मुझे एक आयत दिया, यशायाह का किताब उसका 54 अध्याय उसका दूसरा वचन. And the Bible says that enlarge the place of your tent. और बाइबल कहती है अपनी हदों को बड़ा कर दे. This year is a year of prosperity. और ये साल जो है अमीरी का साल है. Can you say amen to that? Amen. Hallelujah. Just not the prosperity about money and finances, but the kingdom of God will expand and extend everywhere. और ये सिर्फ वैसों की उन्नति का नहीं परंतु परमेश्वर की राज्य के भी उन्नति का साल है. Can you say amen to that? आमेन. Hallelujah. हालेलुया. One king is in the Old Testament. और पुराने नियम में एक राजा है. His name is Jabin. और उसका नाम है जाबीर. And he was ruling over Israelites. There was so many problems. और वो यहूदियों के ऊपर जो है राज्य कर रहा था और कई मुसीबत उसके वजह से हो रही थी. For 20 long years. और 20 लंबे सालों के लिए या जाबीन राजाने किती वर्ष त्रास दिला इस्रायल लोकांना? 20 वर्ष. After those 20 years, God raised one lady. और 20 सालों के बाद परमेश्वर ने वहां पर एक औरत को खड़ा किया. And her name is Deborah. और उसका नाम है डिबोरा. And somebody else was there and his name was Barak. और एक और था वहां पे जिसका नाम था बैराक. Through both of them, God set his people free. और उन दोनों के द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को आजादी दिलाई. Hallelujah. Hallelujah. 20 वर्ष त्रास होता. 20 वर्षानंतर दबोरा आणि बराक यांच्याद्वारे इस्रायल लोकांना सुटका मिळाली. और आमेन. 20 साल वो परेशानी में थे. उसके 20 साल के बाद दबोरा और बैराक के द्वारा प्रभु ने उन्हें आजाद किया. ती दबोरा इथं कुठेतरी बसलेली आहे. वो डेबोरा यहीं कहीं बैठी हुई है. Are you still here? तो बराक इथं कुठेतरी वो बसलेला. बराक यहीं कहीं बैठा हुआ है. Hallelujah. This is 2020. और ये 2020 है. The year of redemption. ये जो है पश्चाताप का साल है. Can you say amen to that? Amen. Hallelujah. Amen. याकूब सासरवाडीमध्ये किती दिवस राहिला? याकूब अपने ससुराल में कितने वर्ष रहा? ज्या दिवशी बापाचं घर सोडलं जिस दिन बाप का घर छोड़ा त्या दिवसापासून फक्त रनिंग रेस चालू होती. उस दिन से बस वो दौड़ ही रहा था. Hallelujah. He deceived his own brother, even the father. उसने अपने खुद के पिता और भाई को धोखा दिया. Who are you? He said, I'm Esau. और प्रभु उसको पूछा इसाक ने कौन है? वो कहता है मैं ईसाऊ हूँ. बापाला डाऊट आला होता, तू जरा थोडा याकोबासारखा वाटतोस. नाही नाही, मी एसावच आहे. Hallelujah. He deceived his father. उसके पिता को पता चल गया था पर उसने अपने पिता को धोखा दिया. अपना बड़े भाई ईसाऊ का नाम And बताया. he stole all the blessings of elder brother. और उस अंधे पिता से अपने बड़े भाई के तमाम बरकतों को उसने ले लिया. So when his father blessed him, तो जब उसके पिता ने उसे
उसे आशीष Then दिया। after he left the place and he ran from his family. उसके बाद वो अपने परिवार और घराने को छोड़कर वहां से दौड़ा From that day, just he was running and running and running. और उस दिन से वो दौड़ ही रहा था। He left his family, he left his house and he ran away. उसने अपने परिवार अपने घराने को छोड़कर वो चला गया Hallelujah, because he was afraid of his own brother. क्योंकि वो अपने खुद के भाई से डर गया था। Genesis chapter 28, he ran away from the family. उत्पत्ति के 28 में वो अपने परिवार से दौड़ा। Then he went to his uncle's house. फिर वो अपने चचा के घर गए, Hallelujah, लबान मामाच्या घरी गेला. मामा के घर गए। आगीन गाडी पळता पळता बरोबर मामाच्या गावी पोहोचली. बोले येशू मसीह की जय। Hallelujah. Are you happy? क्या आप खुश हैं? When he reached his uncle's house, जब अपने मामा के घर पहुंचे, he saw a girl. उसने उनकी बेटी देखा। बघता क्षणी प्रेमात पडला. लोक कुठं कधी कसे पडतील काय सांगता येत नाही. चेंबूरचे लोक चांगले आहेत, मी दुसऱ्या लोकांबद्दल बोलतोय. Amen. Hallelujah. So just he saw that girl. He was just filled with love. और उस मामा के गांव में उसने एक लड़की को देखा और उसके प्यार में पड़ गया। Then he asked Laban to give that daughter to him. और फिर उसने अपने मामा से पूछा कि वो अपनी बेटी मुझे दे। 7 वर्ष सक्त मजुरी. तब उससे कहा गया कि 7 साल तू सेवा कर। 7 years. 7 साल। Just he started working just for one girl. और एक लड़की के लिए उसने काम करना शुरू किया। Hallelujah. बोले यीशु मसीह की जय। मला एक प्रश्न नेहमी पडतो. हमेशा एक सवाल मेरे दिल में उठता है, बापाने आशीर्वाद दिलाय आणि सासऱ्याच्या घरी जाऊन गुलामी करतोय. आशीर्वाद पिता से लिया और जाके ससुर के घर पे काम कर रहा है। When I go to my in-laws place, जब मैं अपने ससुराल जाता हूँ, सासूबाईंनी लवकर पाणी जर नाही आणलं ना, आत्ता पण प्रेज द लॉर्ड, जय महाराष्ट्र, बोले येशू मसीह की. पण आपली याकोबाची स्टोरी वेगळी होती. पर याकूब जो है अलग तरीके से कर। अरे वा वा वा, जावई बापू आले तेवढे भांडे घासून घ्या ना, आल्या सरशी. ते जरा सासऱ्यांचे कपडे पडले तेवढे धुवून घ्या जरा, आला त्याच्यात. 7 years 7 साल चाकरी बायबल मध्ये लिहिले. उसने सेवा किया। हालेलुया. आता सेवा म्हणजे ट्रान्सलेशन मध्ये लोकांना वाटेल मिनिस्ट्री वगैरे केली की काय, त्याने नाही. अपने ससुर की गुलामी की उसने। हा, चाकरी केली त्याने, गुलामी केली. गुलामी की। 7 वर्षानंतर झालं लग्न. 7 साल के बाद शादी ही हुई। गॉट मॅरिड. ही वॉज सो हॅपी. उसका शादी हुआ, वो बहुत खुश था। लग्न झाल्यावर दुसऱ्या दिवशी समजलं, अरे ही तर जी आवडली ती नाही, ही दुसरी चालली. पर शादी के दूसरे दिन उसे पता चला कि जिसको मैंने पसंद किया और जिसके लिए मैंने काम किया ये वो नहीं, कोई और लड़की है। सासऱ्याने फसवलं. ससुर ने फंसा दिया। बोला असं का केलं. ऐसा क्यों किया? मग मोठीचं लग्न केलं. आता छोटी पाहिजे, परत 7 वर्ष. अच्छा, बड़ी का शादी किया, अब छोटी वाली से करना है और 7 साल गुलामी कर। टोटल 14 years. पूरे 14 साल उसने गुलामी की। Again few more years he stayed there. और कुछ और साल वो वहीं पे रहे। Totally 20 years he stayed in the father-in-law's house. और तकरीबन 20 साल वो यूं अपने ससुराल में रहे। He wanted to flee. He wanted to leave that place. वहां से उन्हें निकलना था, वहां से उन्हें आजाद होना But था। it took 20 years to leave him that place. पर याकूब को 20 साल लगे वहां से निकलने के After लिए। 20 long years he left that house. और 20 के लंबे सालों के बाद वो घर से वो निकले। And if you will read Genesis chapter 31, you will understand. He ran away from his father-in-law. और उत्पत्ति के 31 में पढ़ो तो आप समझोगे कि वो अपने ससुराल से ससुर से दौड़े। When he was in the father's house, he left the house and he ran away. जब अपने खुद के पिता के घर में थे, अपने पिता का घर छोड़े और दौड़े। When he was in the father-in-law's house, he left the house and he ran away. जब अपने ससुर के घर में थे, ससुर का घर छोड़े और दौड़े। So wherever he went, he was running and running. तो जहाँ कहीं याकूब गए वो दौड़ते रहे और Even दौड़ते he रहे। was blessed, he was afraid of people. वो हालांकि वो बरकत से नवाजे गए थे अपने पिता से, फिर भी लोगों से डर था। He kept on running away from the situations. वो परिस्थितियों से दौड़ते रहे, He kept on running away from his problems. अपने तकलीफों से दौड़ते रहे। He kept on running. वो दौड़ते रहे, He kept on running. वो दौड़ते रहे। But one day, पर एक दिन in Genesis chapter 32, उत्पत्ति का 32 अध्याय में he decided, उन्होंने निर्णय लिया, the brother who wanted to kill him. जो भाई उसे मारना चाहता Are था। you still here, church? क्या आप यहाँ पर है कलीसिया? He decided, my brother wants to kill me, याकूब ने निर्णय लिया कि मेरा भाई मुझे मारना but चाहता है, still I will go and meet my brother. लेकिन फिर भी मैं अपने बड़े भाई से जाकर मिलूंगा। Can you say amen to that? आमीन। Hallelujah. Hallelujah. His own brother Esau wanted to kill Jacob, but still he decided, I will go to my brother and I will meet him. उसके सगे भाई, उसके खुद के सगे भाई ईसाऊ को उसे मारना था, लेकिन उसने निर्णय लिया कि मैं जाकर अपने बड़े भाई से मिलूंगा। When he decided, my problem is my brother and I will meet him.
और उन्होंने जब निर्णय लिया कि जो भी मुसीबत मेरे भाई से मैं जाकर मिलूंगा, बोलो यीशु मसीह की। जय। He decided to meet his brother. उसने निर्णय लिया अपने भाई से मिलने का। And when he started his journey, और जब उन्होंने वो सफर शुरू किया, so all his family members and everybody, they were walking ahead of him. और उनके तमाम परिवार वाले उनसे आगे चल रहे थे। And in Genesis chapter 32 और उत्पत्ति के 32 अध्याय में and 22 to 32, और 22 से 32 the Bible says that बाइबल बताती है everybody left him and he was all alone. हर कोई उसे छोड़कर आगे निकल गया और वो अकेला रह गया। When you are alone, जब आप अकेले पड़ जाते हैं, sometime, कभी कभी, hallelujah, it happens according to your faith. और वो आपके विश्वास के द्वारा होता है। Many people, they are attacked by devil when they are alone. कई बार ऐसा होता है कि लोग जब अकेले पड़ जाते हैं, शैतान के द्वारा गुमराह हो But जाते the हैं। people of God, when they are alone, God visits them personally. परंतु परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग जब वो अकेले भी पड़ जाए तो परमेश्वर उनके पास आता है। So he was और all जब alone. वो अकेला पड़ गया, And when he was alone, और जब वो अकेले थे, he saw one man there. उन्होंने एक व्यक्ति को देखा वहां, Hallelujah. When he saw that man, और जाकर उस पुरुष को उसने देखा, he never knew who was he और उन्हें नहीं पता याकूब को कि वो पुरुष कौन है and why that man came to him. और ये पुरुष मेरे पास क्यों आया। But as he saw that man, पर जैसे उस पुरुष को उसने देखा, the wrestling started in between that man and Jacob. और याकूब और उस पुरुष के बीच में कुश्ती शुरू हो गई। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया. हालेलुया। आपल्याकडे कुस्ती कधी सुरू होते? अपने इधर कुश्ती कब शुरू होती है? एक तर भांडण झाल्यानंतर, नाही तर एक तर कॉम्पिटिशन असल्यानंतर. तिकडे कॉम्पिटिशन पण नव्हती आणि तिकडे भांडण पण झालं नव्हतं. हालेलुया. स्टिल द रेसलिंग स्टार्टेड दॅट डे. वहां पे ना तो कोई इवेंट था, ना ही कोई रेसलिंग का वहां पे चैंपियनशिप था, लेकिन वहां पे कुश्ती शुरू हो गई। That man was wrestling with him for whole night. और पूरी रात ये कुश्ती चलती रही। How long they were wrestling? कब तक वो कुश्ती लड़ रहे थे? Whole night. पूरी रात। Jacob was not knowing who was that person. हालांकि याकूब को नहीं पता था कि सामने वो पुरुष कौन है, And he never said anything. और उसने कुछ कहा भी नहीं But से। whole night they were wrestling with one another. पर पूरी रात एक दूसरे से वो लड़ते रहे, कुश्ती करते रहे। And now it was a time for the dawn. और अब जो है सुबह होने का वक्त हो गया। So that man, that unknown person said, "Let me go now." तब उस अनजान व्यक्ति ने याकूब से कहा कि अब मुझे जाने दे। Jacob said to him, याकूब ने उनसे कहा, "Until and unless you bless me, जब तक तू मुझे बरकत नहीं देता, I will not leave you." मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। What he said? क्या कहा? Until and unless you bless me, I will not leave. जब तक आशीषित नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। So my brothers and sisters, तो मेरे भाई और बहनों, when that man वो पुरुष asked his name, "What is your name?" उससे पूछा कि याकूब को कि तुम्हारा नाम क्या है, And he said, he answered, "Jacob." और याकूब ने कहा मेरा नाम याकूब है। What is the meaning of Jacob? याकूब का मतलब क्या है? When he went to his own father, जब वो अपने स्वयं पिता के पास गए, his father asked, "What is your name?" तब उसके पिता ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? "I am Esau." तब उसने कहा ईसाऊ। But when this man asked him, "What is your name?" पर जब इस अनजान पुरुष ने उससे पूछा तेरा नाम he क्या है, said, "Jacob." उसने बताया He याकूब। deceived his father, but right now he cannot deceive that heavenly person. वो उसने अपने शारीरिक पिता को तो धोखा दे दिया, पर इस स्वर्गीय व्यक्ति को वो धोखा नहीं दे सकता। When he said, "My name is Jacob," जब उसने कहा मेरा नाम याकूब है, so that person said to him, "From this day onwards, your name will be Israel." तब उस पुरुष ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम याकूब नहीं इज़राइल Can you होगा। say amen to that? आमीन। Clap your hands for the glory of प्रभु के God. लिए ताली बजा के धन्यवाद करो। His name changed. उसका नाम बदल गया, Whatever the name was given to him was just a deceiver. और जब उसे जो नाम पहले दिया गया था उसका मतलब था धोखा देने वाला। But now he has a new name and that is Israel. परंतु अब उसके पास एक नया नाम है जिसका मतलब है इज़राइल। El. एल, Israel. El means El, Jehovah. और इज़राइल, एल जो है ई एल आगे वो यहोवा को संबंधित है। Can you say amen to that? Amen. El Shaddai, El Sidkenu. El means Jehovah. तो जैसे एल शड्डाई, एल सिद्दीक़ुनु, एल यानी परमेश्वर को दर्शाता Till है। today his name was content with the lie, but now the God has entered into his name.
इससे पहले उसका नाम जो है झूठ और धोखेबाज से जुड़ा जाता था, परंतु परमेश्वर ने उसका नाम बदल के वहां पे एल लगा के उसे अपने आप से जोड़ दिया। Hallelujah. Somebody who is able to fight with God and human being, that is Israel. और ऐसा जो मनुष्य से भी और परमेश्वर से भी लड़ सके वो ही इज़राइल है। Hallelujah. When you hear this, it's very painful. How this man can fight with God? How it is possible? जब आप ये सुनते हैं तो दर्द होता है कि कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर से लड़ सकता है। Hallelujah. One classical tabla player is there whose name was Allah Rakha. Very popular. और एक क्लासिकल तबला प्लेयर थे, उस वक्त उनका नाम था अल्लाह रखा। World's number one tabla player. और वो पूरे दुनिया में बहुत बड़े तबलिस्ट थे। So he taught everything to his son Zakir Hussain. उन्होंने अपने बेटे जाकिर हुसैन को अपनी तमाम चीज सिखाई। Are you here? Amen. पास्टरला वाटतं माझा मुलगा पण पास्टरच झाला पाहिजे. पासवान को लगता है उनका बेटा भी पासवान ही होना चाहिए। Amen to that. प्रत्येक बापाला वाटतं की नाही? प्रत्येक बाप को ऐसा लगता है कि नहीं? Wrestling. कुश्ती। Hallelujah. God was teaching Jacob how to fight. और उस रात परमेश्वर याकूब को लड़ना सिखा रहे थे। Hallelujah. Hallelujah. It was not just the fighting, but God was training him. और वो सिर्फ कुश्ती नहीं हो रही थी, परंतु परमेश्वर उसे सिखा रहे थे। So whole night God trained him how to fight. और पूरी रात इज़राइल को परमेश्वर ने याकूब को वहां पे लड़ना सिखाया। त्या रात्री तो भेटलेला माणूस त्याने त्याला नाव दिलं, तुझं नाव आज नंतर इस्राएल असणार. तुझं नाव इस्राएल म्हणजे देवाबरोबर झगडणारा, त्याच्याबरोबर लढणारा, साक्षात देव स्वर्गातून तिथं उतरला होता. हालेलुया. Amen. प्रेज द लॉर्ड. येशू त्याच्याबरोबर लढत होता. ऐकते तुम्ही? और उस रात प्रभु यीशु के साथ वो कुश्ती कर रहा था। Are you still here? Hallelujah. When he got that name Israel, that with that name we can understand he fought with whom? God. और जब उसे वो नाम मिला इज़राइल, तब हम समझ सकते हैं कि वो परमेश्वर के साथ लड़ा था। लढायला असं शिकवलं. और लड़ना ऐसा सिखाया उसे। आजपर्यंत कोणता देश इस्रायल पुढे उभा राहू शकतो? और आज तक इज़राइल के सामने कोई देश रुक ना सका। हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की जय। Focus your eyes on God. अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगा के रखें। Always focus on Jesus. That's all. और हमेशा प्रभु यीशु की तरफ अपना नजर को Once रखें। God will teach you something, एक बार प्रभु ने आपको कोई चीज सिखा दी, you will be making history. तो फिर आप इतिहास बनाओगे। Hallelujah. The day when you make Holy Spirit as your teacher. पर जिस दिन आपने पवित्र आत्मा को अपने रब्बी यानी टीचर के गुरु के रूप में ले लिया, Israel. इज़राइल Someone who wrestles with God. And एक ऐसा even जो with परमेश्वर और मनुष्य से लड़ता है। Hallelujah. Exodus chapter 33 and verse 20. Nobody can see God. परमेश्वर Face को of God. कोई देख नहीं सकता, परमेश्वर की शक्ल को कोई देख नहीं सकता। If anybody will see God, the person will die immediately. The अगर कोई Bible व्यक्ति says. परमेश्वर को देख ले तो वो व्यक्ति वहीं मर जाएगा। Hallelujah. But he saw God. परंतु उसने प्रभु को देखा। Hallelujah. Why? Because it is written in the Matthew chapter 5 verse 8. क्योंकि मत्ती के किताब में 5वें अध्याय 8वें वचन में लिखा है, Blessed are the pure in heart, जो दिल के शुद्ध है वो बरकती है, for they will see God. कि वे परमेश्वर को देखेंगे। Hallelujah. If your heart is pure, you can see God. अगर आपका दिल साफ है तो आप प्रभु को देख सकते हैं। Can you say amen? क्या आप आमीन कह सकते John हैं? chapter 1 verse 18. John यूहन्ना 18. उसका 1 और 18 The Bible says that बाइबल कहती है, no one has ever seen God except Jesus. यीशु के सिवा और किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। Hallelujah. Hallelujah. When you accept Jesus, जब आप प्रभु यीशु का स्वीकार you करते are a हैं, new creation in Lord Jesus. आप यीशु में एक नई सृष्टि बन जाते Can you हैं। say amen to that? आमीन। Hallelujah. हालेलुया। God created Adam. परमेश्वर ने आदम की रचना की। How he created? कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया. मिट्टी से। हाँ हाँ. सोन्यापासून का नाही बनवलं? सोना से क्यों नहीं बनाया? काय महाग आहे? Gold is expensive or उस वक्त भी सोना महंगा था। काय? सोनं महाग आहे की चांदी महाग आहे की माती महाग आहे? सोना महंगा है, चांदी महंगा है या मिट्टी महंगा है? सोन्याचं बनवायचं ना. तो सोने का ही बनाना मूल्यवान था। माणूस बनवायचा, मूल्यवान काहीतरी वापरायचं. का मातीचं बनवलं? एक बहुमूल्य व्यक्ति बनाना था तो सोने से बनाना था, मिट्टी से क्यों बनाया? बी असतं ना, बीज बीज होती है ना, बीज. सीड. बीज आहे ना, सोन्यामध्ये चांदीत पेरलं तर नाही उगवत, पण मातीत पेरलं तर उगवतं. म्हणून त्याने तुम्हाला आणि मला बीज को आप सोने या चांदी में डालो तो वहां से कुछ नहीं उगता, पर जब बीज मिट्टी में डाली जाती है तो वहां
तुमचं जीवन फ्रुटफुल व्हावं ही देवाची इच्छा आहे. आपकी जिंदगी फलों से भरे, ये परमेश्वर की इच्छा है. फर्स्ट ही क्रिएटेड एडम और इसलिए पहले आदम को बनाया and then after he बाद- created Eve. और फिर हवा को बनाया So he said, Adam, just sit on the chair. और कहा कि आदम इस कुर्सी पर बैठ, Just sit here. I will बस- make Eve for you. यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए हवा बनाता हूँ. हा परत दुसरा चिखल घेतला ना हवा बनवली बरोबर ना. हा अशीच काढली. त्याला म्हणलं बस इथं काढ तू. He made him sleep. और प्रभु ने उसको आराम में डाल दिया. So Adam was sleeping. और आदम जो है सो रहा था. And what God did? और परमेश्वर ने क्या किया? God just took his rib. आदम की फसली निकाली. Hallelujah. God is the first surgeon. परमेश्वर सबसे पहला ऑपरेशन करने वाला है. Hallelujah. बोले यीशु मसीह की जय. हालेलुया. त्याला मस्त झोपी घातलं, फासडी काढली, स्त्री बनवली. उठून बघतो असा शॉक झाला. देवाला काय बोलूच दे ना. माझ्या हाडातलं हाड, माझ्या मांसातलं मांस, मला हिला नारी म्हणावे. जे चालू झाला, कारण एवढे दिवस कोणी भेटलंच नाही त्याला. हॅलो प्रेज द लॉर्ड. आदाम आणि हवा एदेन बागेत राहत होते तेव्हा वेदना होत्या का? मग कशाला झोपवायचं? जागेपणीच कापायचं ना आणि घ्यायची फासळी बनवून वगैरे. बरं झालं देवाने त्याला झोपवलं. जर का तो जागा असता त्यांनी बघितलं असतं बरगडी पासून अशी बाई बनवतात होय. माणसाला 12 दुने 24 बरगड आहेत. प्रत्येक माणसाने 24 बायका बनवल्या असं स्वतःसाठी. त्या दिवशी जागा असतं तर बरं झालं देवाने त्याला झोपवलं. मस्त छान झोपलं. आमेन. माय सिंपल क्वेश्चन टू यू. मेरा एक साफ सवाल है आपके लिए. Where was the Eve before she came into the existence? हवा संसार में आने से पहले, जिंदगी में दाखिल होने से पहले वो कहाँ पर थी? Exactly. What is your good name, brother? आपका नाम? Yes. Just clap for brother. भाई के लिए Jasmine. ताली बजाएंगे. Wonderful. Eve came into the existence before that she was inside the Adam. और हवा जिंदगी में दाखिल होने से पहले आदम के ही अंदर बस रही थी. So the Adam and Eve, they were living together. तो आदम और हवा दोनों एक साथ रह रहे But थे. because of the loneliness of Adam, परंतु आदम की तन्हाई की वजह से God took her out and God make her stand with परमेश्वर Adam. ने उसी के अंदर से हवा को निकाल के उसी के बगल में And खड़ा God कर said दिया. to them, you are not two but one. और परमेश्वर ने कहा तभी भी तुम दो नहीं एक हो. Husband and wife, they are not two but they are पति और one. पत्नी दोनों एक है. Can you say amen to क्या that? आप आमीन कह सकते हैं? Let me tell you one thing. मुझे एक चीज कहने When दीजिए. Jesus died on the जब cross, प्रभु यीशु सूली पर लटके the wound that the Adam had, same wound Jesus had. और जो जख्म आदम के फसली में था वैसा ही जख्म यीशु के भी फसली में थी. The blood and the water came out. और लहू और पानी वहां से बहा. I'm a doctor. I don't hesitate to speak such things. और मैं एक डॉक्टर पेशे से होने के नाते ऐसी चीजों को बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं. When the child born, the blood and the water comes out. जब एक बच्चा पैदा होता है तो लहू और पानी बहती है. There was a wound for the Adam and the Eve came into existence. और जब आदम को जख्म हुआ तो हवा बाहर आई वहां से. When the Jesus was pierced, और जब प्रभु यीशु के फसली में जख्म हुआ you and me born. तो आप और मैं बाहर आए. We are born of God. हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं. We are born of God. हम परमेश्वर से पैदा हुए. We are not belong to this world. हम इस संसार के नहीं. Our citizenship is from heaven. हमारा सिटीजनशिप जो है स्वर्ग में है. We don't belong to this world. हम इस संसार के नहीं. So why we are here? हम यहाँ पर फिर क्यों है? Just to change this world. बस इस संसार को बदलने To के bring this world at the feet of Almighty और God. वचन बांट के परमेश्वर के द्वारा इतिहास लेकर आने. Amen to that. Hallelujah. We are body of Christ. हम प्रभु यीशु के देह है. We are in Christ. हम प्रभु यीशु में हैं. If somebody will tell you, अगर आपसे कोई I कहे have seen God. I don't believe in Jesus, but still I have seen God. मैं यीशु में विश्वास नहीं करता पर फिर भी मैंने प्रभु को देखा है. त्याच्यासारखा लबाड आणि ढोंगी आणि खोटारडा आणि but that man is just like that. वो व्यक्ति जो है बहुत बड़ा धोखेबाज है. Jesus, just Jesus, nobody else.
has seen God. और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने पिता को देखा है। But when you accept Jesus, you are in Jesus. पर जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं, आप यीशु के अंदर हो जाते Through हैं Jesus, you can see your और प्रभु God. यीशु के द्वारा आप पिता को देखते Only हैं through Jesus, you can see और your सिर्फ God. यीशु के ही द्वारा आप पिता को देख सकते Only हैं through Jesus, you can see और your सिर्फ God. प्रभु यीशु के द्वारा ही आप प्रभु को देख सकते हैं। Jacob was running everywhere. याकूब हर जगह दौड़ रहा था, But the day he decided to face his brother, पर जिस दिन उसने निर्णय लिया कि मैं अपने भाई को मिलूंगा, he just decided, I will face my problem. उसने निर्णय लिया कि मैं अपने मुसीबत को देखूंगा, I will not run away from my problem, but just I will face the problem. मैं अपने मुसीबतों से दौड़ूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, अपने मुसीबतों को मैं लड़ूंगा। That day God visited him. उस दिन प्रभु ने उसको दर्शन दिया। Hallelujah. Some people, when they are surrounded with the problems, कुछ लोग हैं जब मुसीबत घेर लेता है उन्हें, they try to escape from the problem. वो उस तकलीफों से बाहर निकलने का देखते हैं। In Chembur, I am facing this problem. I will go to Vashi. और अगर मुझे चेंबूर में कोई प्रॉब्लम है तो मैं वाशी में रहने जाऊं, Again, Vashi is the problem. I will go to the Panvel. और वाशी में मुसीबत हुई तो मैं पनवेल जाऊं, Chennai, फिर चेन्नई चला जाऊं, Kanyakumari, फिर कन्याकुमारी चले जाऊं, Colombo. कोल्हापुर चले जाऊं। Some people like this. कुछ लोग ऐसे हैं एक गेम असतो तळ्यात मळ्यात तळ्यात और एक ऐसा गेम होता है तळत मळत। आदेश ब्रदरसाठी तुम्ही टाळ्याच नाही वाजवल्या असून आज ह्या चर्च मध्ये उद्या दुसऱ्या चर्च मध्ये आज इस कलीसिया में, कल दूसरी कलीसिया में, ज्या चर्च मध्ये तुम्ही आहात तिथं स्थिर राहा. जिस कलीसिया में भी आप हो वहीं पर स्थिर रहो। आमेन. आमेन। हालेलुया. डोंट जंप हियर एंड देयर. या वहां पे मत दौड़िए, हालेलुया. स्टैंड स्टिल एक जगह स्थिर खड़े रहिए एंड फेस योर प्रॉब्लम. और अपने मुसीबतों को लड़िए। नाउ यू नो दिस इज द प्रॉब्लम. अगर आपको पता चल जाए अब कि ये मुसीबत है, यू हैव टू फेस द तो प्रॉब्लम. आपको उस मुसीबत से लड़ना है। हालेलुया. व्हेन यू से गॉड जब आप कहते हैं प्रभु हेल्प मी, मेरी मदद आई कर, एम गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम. मैं इस मुसीबत से गुजर रहा हूँ, हिज वर्ड सेज दैट तो उसका आयत कहता है मृत्यू छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो. हालेलुया. अगर मैं मौत की Praise the तराई Lord. से भी गुजरूं। मृत्यू छायेची दरी म्हणजे काय? मौत की तराई में क्या होती है? नदी असते ना, रिव्हर, ती कुठून वाहते? दऱ्यांमधून वाहते. डोंगराचं पाणी सगळं कुठे येतं? सगळं पाणी कुठे येतं? सारा पानी नदियों से, पहाड़ों से कहां पर आता है? दरीमध्ये येतं ना, तराई में। दरीमध्ये येतं. मग ते दरीमध्ये पाणी वाहतं. प्रत्येक जनावर त्या नदीकडे पाणी प्यायला येणार. सिंह पण येणार, आपला छोटासा ससा पण येणार, उंट येणार, काळवीट येणार. जे जनावर जंगलात असतील ते कुठे येणार? तराई। पाणी प्रत्येकाला लागतं, ते तिथे येणार. देवाचं कोकरू म्हणतंय की त्या ठिकाणी मी जिथं आता पाणी प्यायला जाणार आहे तिथं हिंस्र पशु माझी वाट बघतायत. और जहां पे इस तराई में मैं पानी पीने जा रहा हूं, वहां पर जो है खौफनाक जानवर आने वाले। ती जागा, वो ती जगह, दरी माझ्यासाठी तराई. मृत्यू छायेची दरी आहे, पण मला पाणी पिणं गरजेचं आहे. वो तराई जो है मेरे लिए मौत की तराई है, पर मुझे पानी पीना है। हालेलुया. ते मेंढरू बोलतं की मृत्यू छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी मी अरिष्टाला भिणार नाही, कारण माझा मेंढपाळ. हालेलुया. माय शेफर्ड इज विथ मी. और एक भेड़ कह रहा है कि मुझे प्यास लगी है, इस मौत की तराई से मैं गुजर के पानी पीऊंगा और कोई खौफनाक जानवर मुझ पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि मेरा चरवाहा मुझे बचाएगा। Psalms 23, who wrote that psalm? ये भजन संहिता 23 किसने लिखा? जो एक उत्तम मेंढपाळ होता, जो एक त्याचं नाव अच्छा होतं चरवा- दावीद. और उनका नाम था बादशाह दाऊद। हालेलुया. He killed the wild animals just to save the sheep. और अपने भेड़ों को बचाने उन्होंने खौफनाक जानवरों को हत्या की। दावीदाने ते यासाठी लिहिलं की मी तर एक साधा मेंढपाळ असून माझ्या मेंढराला एवढं सांभाळतो, माझ्या देवाला जर मी मेंढपाळ केलं तर तो मला किती सांभाळणार आहे. Amen. हालेलुया. बोलो यीशु मसीह की जय। My brothers and my मेरे sisters. प्यारे भाई और बहनों, So you have to face your problems. तो आपको आपकी मुसीबतों से लड़ना है। Do not run away from your problems. मुसीबतों से भागिए नहीं। कुछ नहीं। Take all your problems under your feet. और सारी मुसीबतों को लेकर अपने पैरों के तलों के नीचे डाल And God will answer your और prayers. प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुननी और आपको जवाब देगा वो। Can you say amen to that? Challenge your challenges. अपने चुनौतियों को चुनौती दो In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। Ask God. और प्रभु से पूछिए। There's big giant Goliath.
और एक बड़ा गॉलियत मेरे सामने खड़ा है I want him under my feet. और मैं उसे अपने पैरों के नीचे देखना चाहता हूँ। Hallelujah. And God will put your Goliath under your feet. परमेश्वर आपके गोलियत को आपके पैरों के नीचे डाल देगा Hallelujah. You will stamp over your Goliath. और उस गोलियत पर आप पैर रखोगे और कुचल दोगे उसे। Hallelujah. आमेन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। जर मला स्टेजवर जायचं कसं जावं लागेल? अगर मुझे स्टेज पे जाना है तो कैसे जाना होगा? इकडून जावं लागेल. यहाँ से जाना होगा। Praise the Lord. Hallelujah. ह्या पायऱ्या चढताना और इस पायरी पर स्टेज पे चढ़ते हुए दाविदाला तिकडं सिंहासन होतं. और बादशाह दाऊद की सिंहासन वहाँ ऊपर है तो साधा मेंढपाळ आहे. और वो एक साधारण चरवा है। त्याने काय केलं माहिती आहे का? उसने क्या किया? गल्ल्याताला मारलं गोलियत को मारा आणि गल्ल्याताच्या अंगावर पाय ठेवले. और गोलियत के सिर पर शरीर पर पैर रखकर चढ़ा तो जाऊन त्याच्या और सिंहासनावर ऊपर बसला. चढ़कर अपनी सीट पर बैठ गया। वाह। येशूला पण पित्याच्या उजवीकडे बसायचं होतं जगात आल्यानंतर. प्रभु यीशु को भी जमीन पर आने के बाद अपने पिता के बगल में बैठना ह्या था अशा पायऱ्या केल्या त्याने. और ऐसे सीढ़ियों को देखा। हालेलुया. सिन, पाप, पेन, दर्द, ॲगनी मुसीबत आणि सगळ्यात डोकं ठेचून टाकलं. आमेन. हालेलुया. He destroyed all the works of the enemy. और शैतान के हर एक कार्य को उसने नेस्त नाबूद कर And दिया Jesus crushed the head of the devil. और शैतान के सिर को कुचल दिया प्रभु यीशु ने। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जर तुम्हाला वाटतं की मला वर्ल्ड चेंजर बनायचंय, अगर आपको लगता है कि आपको इतिहास रचने वाला बनना है, if you will not change yourself, अगर आप अपने आप को नहीं बदले how you can change the world? फिर आप दुनिया कैसे बदलोगे? Hallelujah. Change yourself अपने आप को पहले बदलिए and you will be able to change this whole और world. फिर मुमकिन होगा आपके लिए कि आप दुनिया बदल सकोगे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus is here. प्रभु यीशु यहाँ पर है। Can you say amen to that? क्या आप आमीन कह सकते हैं? Hallelujah. Hallelujah. He's filling you with his fresh anointing. और वो अपने ताज़े अभिषेक से और आशीषों से आपको नवाज रहे हैं So you can be a conqueror and you can become a more than a conqueror. ताकि आप जयवंत और जयवंतों से भी बढ़कर बन सको। Luke chapter 7 and verses 11 to 17. लूका का किताब 7वां अध्याय उसका 11 से 17 The वचन। story of the widow's son who died in the village of Nain. और यहाँ पर जो है गांव में एक विधवा स्त्री के बेटे के मरने की बात है। All the people from the villages, big crowd, the Bible says, they were going to bury that boy. और बहुत बड़ा जो भीड़ है, बहुत बड़ी जो भीड़ है उस औरत के बेटे को गाड़ने जा रहे थे कब्रिस्तान। And from another side, Jesus and disciples and multitude was entering into और the village. इस भीड़ के सामने दूसरी भीड़ सामने से आ रही जो प्रभु यीशु के साथ उनके तमाम चेलों के साथ और उसके तमाम लोग गा रहे हैं। Hallelujah. From one side, the people, they were carrying the dead body. Another side, Jesus was entering into the और village. एक तरफ से जो है किसी का जनाजा जा रहा है और दूसरी तरफ से सामने से प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। दोन्हीकडून मोठी गर्दी आहे. इकडून पण मोठी गर्दी आहे, इकडून पण मोठी गर्दी यहाँ आहे. से भी बड़ी भीड़ आई और वहां से भी बड़ी भीड़ आई। इकडचे रडत चाललेले आहेत, इकडचे आनंद करत चाललेले यहाँ आहेत. से लोग रोते हुए जा रहे हैं, वहां से लोग आनंदित होके आ रहे थे। हालेलुया. जर कोणाची मैत घेऊन चालले तर आपण काय करतो? जब किसी का जनाजा हम देखते हैं तो हम क्या करते हैं? येशूने रस्ता नाही दिला त्या प्रभु दिवशी. यीशु ने पर उस जनाजे को रास्ता नहीं दिया Just he kept on walking. और वो चलते रहे। And when he saw that widow, और जब उस विधवा स्त्री को प्रभु यीशु ने देखा, Jesus said to her, don't cry. प्रभु यीशु ने उनसे कहा मत रो। And the very important thing, और सबसे मुख्य चीज, Jesus touched the coffin of that boy. प्रभु यीशु ने उस आदमी के कफन को छुआ। हालेलुया. तुमची बरकत आज जर तिरडीवर पडली असेल, अग- देवाला त्याला स्पर्श करू द्या. हालेलुया. अगर आपकी बरकत आज कफनों पर भी गिरी है तो आज परमेश्वर को छूने दे उसे। कुठली गोष्ट तुमच्या जीवनामध्ये मरत चाललेली आहे, देवाला त्या गोष्टीला आज स्पर्श जो करू चीज द्या. आपकी जिंदगी में मर रही है परमेश्वर को आज छूने दे उसे। Can you say amen to that? Amen. Hallelujah. Allow him to touch you. और परमेश्वर को मौका दे के वो आपको छुए। Hallelujah. हालेलुया। That dead boy raised. और कफन को छूते हुए वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। Those who were crying and they were coming towards Jesus, और वो तमाम लोग जो रोते हुए जनाजे में प्रभु यीशु के पास आ रहे they थे, went back rejoicing. वो वापस जश्न मनाते हुए गए घर। Hallelujah. Amen. You might have come here with the problems. आप यहाँ पे मुसीबतों के साथ शायद आए हो, You might have come here with different kind of things here. अलग अलग प्रकार की वेदनाओं के साथ आए हो, But I challenge you. परंतु मैं आपसे चुनौती देता हूँ, When this conference will be finished, ये सभा जैसे खत्म होने लगेगी, new chapter of your life will start. आपकी जिंदगी का एक नया सभा प्रभु शुरू कर देगा। Hallelujah.
You are not ordinary people. आप एक सामान्य लोग नहीं हैं। Hallelujah. You will shake this city of Mumbai. आप इस मुंबई शहर को हिलाकर रख दोगे। Great mighty warriors are sitting here. और अद्भुत योद्धा मेरे सामने बैठे हैं। Hallelujah. The history makers are here. और इतिहास रचने वाले यहाँ बैठे हैं। World changers are here. दुनिया को बदलने वाले यहाँ पर God is बैठे। going to use you in a mighty प्रभु way. आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके में इस्तेमाल करेगा। Can we stand? क्या So आप we सब can खड़े हो pray. सकते हैं कुछ क्षण के लिए? If you are facing problem in your ministry in Bombay, अगर आप इस मुंबई शहर में कोई तकलीफ से जूझ रहे हैं and if you have planned to run away from Mumbai, और मुंबई को छोड़कर दौड़ने का आपने निर्णय ले लिया I'm है, telling you in the name of Jesus, तो मैं आपसे कहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से don't run away from your battlefield. अपने रणभूमि से ना दौड़िए, Victory belongs to you. क्योंकि जयवंतता आपकी होगी। If you are facing any problem where you are staying right now, आप अगर ऐसे कुछ मुसीबत से जूझ रहे जहां पर आप रहते हो इस वक्त, if you are staying somewhere, just you are saying, I'm facing several problems in this place, I have to leave. और ऐसे कोई जगह रह रहे हो जहां पर मुसीबत है आपको और आप कह रहे हैं ऐसी मुसीबतों से मुझे जूझना पड़ रहा है, Look at me, church. मेरी तरफ देखिए कलीसिया। Sometimes some people they say like this house is full of demonic spirits, so leave this house. और कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं ये घर जो है बहुत ही अशुद्धता से भरी है, अदैविक चीजों से भरी है, इस घर को छोड़ दो। The people they say like this. और ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा कहते हैं। If God has given you that house, अगर परमेश्वर ने आपको वो घर से नवाजा then है, that darkness has to flee. तो फिर वहां से वो अंधकार को निकलना Why you are पड़ेगा। leaving that place? आप क्यों छोड़ रहे हो उस घर को? If you believe in God, अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, He will give you enough strength to fight with that तो उस darkness. अंधकार से लड़ने के लिए आपको वो परिपूर्ण शक्ति से देगा। Accept that challenge today. आज उस अंधकार की चुनौती को जो है ग्रहण करो। Till 2019, 2019 तक you have not done many things as God told you. प्रभु ने आपको जो जो करने कहा वो तमाम चीज आपने नहीं किया है, But this year, पर ये साल you have to accept that challenge. आपको ये चुनौती भी ग्रहण करना Whatever है। was difficult for you, जो कुछ आपके लिए असंभव था it will become easy for you. वो आपके लिए आसान कर दिया Because जाएगा, you will not do it. क्योंकि आप नहीं करोगे, But the Spirit of God will do परंतु it in the परमेश्वर name of की आत्मा Jesus. करेगी प्रभु यीशु के नाम से। Yes, I know. और मुझे पता है, हाँ You might be weak, आप शायद कमजोर हो, but that Spirit will make you strong. परंतु खुदा की रूह आपको ताकतवर बनाएगी। You have Holy Spirit in you. आपके अंदर पवित्र आत्मा है, That Holy Spirit is more than enough. और वो पवित्र आत्मा हद से ज्यादा है हमारे That लिए। Holy Spirit will do great and mighty works. वो आत्मा आपके लिए अद्भुत कार्य को करेगा, Expect great things from the Lord. और परमेश्वर की ओर से महान चीजों की अपेक्षा में रहिए। Thank you, Jesus. Glory, glory, glory. Hallelujah. I will जब आंधी चलती है तू साथ होता है, जब आंधी चलती है तू साथ होता है। जो मौत से तराई से गुजर रहे हाथ उठाकर कहेंगे, जब आंधी चलती तू साथ होता है, तू साथ होता है। आंधी चलती है, जब आंधी चलती है तू साथ होता है। मुझे डर नहीं तूफान का, जो तू साथ है। मुझे डर नहीं तूफान का, जो तू साथ है। प्रभु तेरे प्यार में, प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया, मैंने सब कुछ। प्रभु तेरे प्यार में, बुलंद आवाज में, प्रभु तेरे तेरे पीछे हम चले, हमें मुड़ने ना दे। Come on,
You know that God told you to do something, but you are not doing it. आपको पता है प्रभु ने आपसे कुछ करने के लिए कहा था, पर आप वो चीज अब तक नहीं कर रहे God हो। has given you a vision to start something for His work. और परमेश्वर ने आपको कुछ कार्य दिया था, कुछ विजन्स दिए थे शुरू करने अपने काम Maybe को। God has told you to start some church or ministry or something in music, in the worship, in preaching. Something God और has told you परमेश्वर ने आपको already. कहा था कि कहीं कलीसिया, कुछ सभा, कुछ आराधना, कुछ करने के लिए, शुरू करने के लिए, And you have not started it. और आपने अब तक वो शुरू नहीं किया है। I want those people to come forward. मैं for a वैसे moment. लोगों को चाहता हूँ आप आगे आ जाए जल्दी। Please come quickly. जल्दी से आइए आगे। God wants to give you a breakthrough. और परमेश्वर आपको एक बड़ी बेधारी देना चाहते हैं आप। Thank you, Jesus. Glory, hallelujah. ऐसे Don't come by walking, come by running. और चलकर नहीं, दौड़ते हुए आइए परमेश्वर के काम से। Jesus. I'm not asking God for any prophetic word, और but I'm परमेश्वर- just asking God, whatever you have said already to your people, let it accomplish. और मैं परमेश्वर से कोई नबूवत का शब्द नहीं मांग रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि प्रभु तूने जो काम किया था लोगों को करने के लिए, अगर वो नहीं हुआ है तो मुझे बता वो क्या काम है, ताकि मैं तेरे लोगों को फिर बता सकूं। God has shown me 21 people, but few people I can see. और Still परमेश्वर ने many मुझे people are here. 21 लोगों को दिखाया, पर कुछ ही लोग यहाँ पर है, और भी लोग हैं इस भीड़ में। Leave your place and come अपने forward. जगह को You want to छोड़कर- start something for the glory of God, but you have not started yet. आगे आ जाइए। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए कहा था और आपने शुरू अगर नहीं किया है, तो जल्दी से दौड़ कर आगे आइए, क्योंकि प्रभु आपको ऐसी सामर्थ्य से नवाजेगा आज कि आप वो काम को शुरू भी करोगे और पूरा भी कर पाओगे। 10 more people. 10 more और people. 10 लोग हैं, जल्दी जल्दी बाहर आइए। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Rebetu soho rikante korono. Jesus. Rikante korono. Heavenly Father, I pray for these people. स्वर्गीय पिता, मैं तेरे इन तमाम जनों के लिए धन्यवाद In करता the name of Jesus. हूं। प्रभु यीशु के नाम से Take away every barrier from their lives. इनकी जिंदगी से हर एक बंदिशों को निकाल दे। In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से Today is a day of new beginning. आज एक नई शुरुआत का दिन है। Today is a day of new beginning. आज एक नई शुरुआत का दिन है। Today is a day of new beginning. एक नई शुरुआत का दिन है। As a man of God, I प्रभु के declare दास के नाते में घोषणा they will कर, become head, not the tail. आप पूंछ नहीं सर बनोगे। In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम से You're going through the problems right now. इस वक्त आप मुसीबतों को जूझ रहे हैं, But the Lord is saying, परंतु प्रभु कहते हैं all the problems are under your feet सारे now. मुसीबत अब आपके पैरों के नीचे है। You're a more than a आप conqueror. जयवंतों से भी बढ़कर बन You चुके are हैं। more than a आप conqueror. जयवंतों से बढ़कर बन चुके You हैं। are more than a conqueror. जयवंतों से बढ़कर। Thank you, Lord, धन्यवाद हो। for blessing your people. तेरे लोगों को आशीषमंद करने के लिए धन्यवाद हो। Thank you, Jesus. The hand of God is upon you. परमेश्वर का महिम हाथ आपके Go ऊपर। and start the things whatever God said to you. जाकर वो काम शुरू कर दो आज जो प्रभु ने आपको कहा है करने। Clap for Jesus. आज ताली बजाए प्रभु के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद Hallelujah. यीशु। If anybody is sick here, अगर कोई बीमार है यहाँ पर, just raise your hand wherever अपने you बस are. हाथ को उठाइए स्वर की ओर। If you have pain or agony, whatever, कोई sickness, दर्द, कोई बीमारी आपके शरीर में कहीं पर भी, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए। before praying for you, आपके लिए प्रार्थना करने से पहले let me tell you one मुझे thing. एक चीज कहने दीजिए। I'm a doctor by profession. मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। I left my profession. मैंने अपना पेशा छोड़ दिया। One doctor is telling you, एक डॉक्टर आपसे कह रहा है only Jesus can heal. बस यीशु चंगा कर सकता है। Hallelujah. Believe in divine healing. और परमेश्वर की उस दैविक चंगाई में यकीन रखिए। Being a doctor, I can't heal anybody here. एक डॉक्टर होने के नाते मैं यहाँ किसी को चंगा नहीं कर सकता, But one senior, most senior doctor is here. परंतु एक सबसे उत्तम और आले वैद्य यहाँ पर है। His name is Jesus. उनका नाम है प्रभु यीशु He मसीह। will heal you. वो आपको चंगा करेंगे Right now. इसी वक्त, Right now he will heal इसी you. वक्त। Close your eyes. आंखों को बंद करें। If you are sick, just raise your और hand. बीमार है, अगर आप सिर्फ अगर बीमार है तो हाथ को उठाइए। Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Hallelujah.
Loving Heavenly Father, we come to you in the name of हे Jesus. ईश्वर के पिता हम सब प्रभु यीशु के नाम से आपके Isaiah chapter 53 and verse 5. यशाया का 53 अध्याय उसका 5वीं आयत में लिखा Through the stripes of Jesus we are healed. है, और यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। Your name is Jehovah Rapha. आपका नाम यहोवा राफा है। You heal all our sicknesses. आप सारे बीमारियों को शिफा देने वाले। We are the temple of Holy Spirit. और हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के मंदिर है। Lord, प्रभु take control of your people. आपके लोगों के ऊपर नियंत्रण ले Let every sickness shall leave right और now. हर एक बीमारियां छोड़ दे इनको। Let every pain shall leave हर them एक right दर्द now. यीशु के नाम से निकल जाए। Let every darkness shall flee in Jesus' name. हर एक अंधकार निकल जाए यीशु के नाम से। Ribeto soko rikate korodo. Something is happening in your body. कुछ हो रहा है आपके शरीर में। Lord is touching you right प्रभु now. आपको छू रहे इस वक्त। Receive the power of God. ग्रहण करे प्रभु के Receive the सामर्थ्य। power of God. ग्रहण करे प्रभु के Receive the सामर्थ्य। fire of God. प्रभु की आत्मा को ग्रहण करे। Receive your healing. ग्रहण करे। Receive your healing. ग्रहण करे चंगाई Receive your को। healing. ग्रहण करे चंगाई को। Receive your healing. ग्रहण करे चंगाई को। Receive. ग्रहण करे ग्रहण करे ग्रहण करे। Rebeto. Se crosto. तेरे बीज जले हमें न दे तेरे रामा को बोरेंदे नाशा Leave her. Leave. छोड़ उसे छोड़ उसे। Prosto soko rikate korono. Jesus. Shando rebebe seke rikanto korono. Just be in a prayer. Just be in prayer. प्रार्थना की अवस्था में बने रहे। Still the miracles are happening in this place. और कुछ चीजें हो रही है यहाँ पर। Lord is healing many people right प्रभु now. कईयों को चंगाई दे रहे इस वक्त। Thank you, Jesus. I'm seeing God is recreating bones right now. और मैं देखता हूँ प्रभु हड्डियों का निर्माण कर रहे हैं। Somebody is here. Doctor have suggested they want you to get knees replaced. और कई लोग हैं जिनको डॉक्टर ने कहा कि आपका जो है टखनों में जो है बदलना है उसे। But Lord is creating new bones. परंतु प्रभु आपके लिए नई हड्डियों का Lord is निर्माण कर रहे हैं आपके healing your घुटनों में। spine. Lord is healing somebody's और spine. परमेश्वर किसी की रीढ़ की हड्डी को चंगा कर रहा You है। will jump. You will rejoice today. और आप कूदोगे और प्रभु में आप आनंद बनाओगे। Today is the day of your healing. और आज आपकी चंगाई का दिन है। I'm seeing diabetes has healed. और मैं देखता हूँ डायबिटीज चंगी हो गई है। I'm seeing blood pressure, hypertension has मैं gone. देखता हूँ हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर चला गया है। Skin sicknesses are gone. और हर एक बीमारियां जो चमड़े की है, निकल गई है। Hallelujah. I'm seeing fibroid uterus. God has healed you मैं right देखता now. हूँ फाइब्रॉइड यूटेरस के अंदर चंगाई हो रही है। Rebebe seke rikato korono. Glory. God is giving new vision to और somebody. प्रभु किसी को नई दृष्टि दे रहा है। God is giving new vision to somebody. परमेश्वर here. किसी को नई दृष्टि दे Thank रहे you, हैं। Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Give a clap offering to the आज Lord. ताली बजा के प्रभु का Thank you, धन्यवाद Jesus. करें। Glory. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for healing us. Thank you, Lord, for healing. प्रभु Thank you चंगाई for के लिए deliverance. Thank you for your power. आपकी सामर्थ Thank के you, लिए धन्यवाद। Jesus. Raise your hand towards heaven and आज pray. स्वर की ओर हाथ उठाए Thank you, Jesus. Thank you for healing us, Lord. और इन्हें चंगाई देने के लिए धन्यवाद। From this day onwards, we will not run away, आज के दिन से हम मुसीबत से नहीं भागेंगे, but we are going to stamp over the problems. परंतु हम मुसीबतों के ऊपर पैर रखकर खड़े हो जाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु जी। Take your people deeper and deeper today. आपके लोगों को और गहराई में ले जा। We give you all the glory and honor to your सारा name. आदर और महिमा आपके नाम को In देते हैं। Jesus' matchless name प्रभु we यीशु pray. के सामान्य नाम में मांगते हैं पिता। Amen and amen. Give a big hand to Lord और Jesus. आमीन। आए ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कर। Somebody shout a big hallelujah. हालेलुया। यीशु मसीह की जय। Amen. How many of you are healed? कितने लोग चंगे हो गए यहाँ पे? Amen. Hallelujah. Clap to the Lord. Amen. आए प्रभु के लिए Give a ताली big hand. Amen. Can we clap for Jesus? क्या हम one more यीशु time? मसीह के लिए ताली बजा सकते हैं? धन्यवाद।